Good morning everyone. Hope everyone is doing great. Today is 19th of August and it's 10 o'clock in the morning. Welcome back to the channel. Are you planning to buy your first bike or planning to upgrade but confused? Then this video is for you. In this video, I'll be giving you few guidelines which will definitely help you to make the right decision to buy the right bike. So without wasting any further time, let's start the video. Before buying any new bike or upgrading to a new bike, the first thing which you need to do is define the purpose. You need to define why you want to buy the bike. What is the purpose? आप daily commute के लिए भी bike खरीद सकते हो, where you want to go to office and come back, or you want to go to college and come back, or you want to do off-roading, or you want to do touring, or you want to do track racing. आपका purpose कुछ भी हो सकता है, but before buying any bike, please make a note of the purpose or clearly define the purpose. आप ये bike क्यों खरीदना चाहते हो? Once you have defined the purpose, the next would be your requirements. आपके bike से क्या चाहिए? Do you want to buy a bike which is less than 100 cc, or you want to buy a bike which is less than 250 cc, or you want to buy a bike which is less than 500 cc, and so on? Or your main interest is the look, or you want to look for a mileage ki my bike should give me a mileage of let's say 50 kilometers per liter. So all this requirement जो भी है आपको बाइक की तरफ से, you need to make a note of all your requirements. So now you have defined the purpose and you have defined the requirement. The next would be the type of motorcycle. There are a lot of different types of motorcycles in the market. Naked motorcycles हैं, sports motorcycles हैं, tourers हैं, adventure tourers हैं, sport tourers हैं, cruisers हैं, retros हैं. So there are a lot of different types of motorcycle available in the market. आपको decide करना पड़ेगा कि आप कौन सा type of motorcycle आप खरीदना चाहते हो, which is matching your purpose and which is matching your requirement. Let's say you have defined the purpose, you have defined the requirement, and you have fixed the type of motorcycle you want to buy. The next would be the budget. How much are you willing to spend on purchasing this bike? आपका budget कितना है? This is one of the very critical and important role which plays when buying a new bike, because many people in excitement they cross their budget and then later they start regretting it कि भाई हमने बाइक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पैसा डाल दिया, अब दूसरी चीज़ के लिए हमारे पास पैसा नहीं है. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर, बाइक इज़ अ डिप्रिशिएटिंग असेट. आप जो बाइक में पैसा डाल रहे हो वो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं पर घटेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गाड़ी आज खरीदी है 1 लाख के प्राइस पे, next year at the same time the bike rate would be somewhere closer to 75,000. Whenever you buy, ensure you keep this in mind. So never push your budget up. The budget should be always your pocket friendly. I will give you 2 ways of deciding your budget. Decide first how much you want to invest in a bike and keep a margin of 10 to 20%. For example, let's say you want to buy a bike worth 1 lakh. You can keep a margin of 10 to 20%. That would be either 1,10,000 or 1,20,000. कुछ सिनारियोस में फॉर एग्जांपल आपको एक बाइक पसंद आया पर उसका नेक्स्ट वेरिएंट पसंद आया आपको, और वो बाइक आपके 5-6 हज़ार ज़्यादा हो रही हैं, देन यू कैन पुश योर बजट बाय लेट्स से अनदर 5,000 or 10,000, बट डू नॉट क्रॉस मोर देन 20% ऑफ योर फिक्स्ड बजट. द सेकेंड वुड बी द मैक्सिमम बजट. यू डिफाइन कि आप कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हो. लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट 1.3 lakhs. So आप ये बजट रख लीजिए 1.3 lakhs. At any point of time don't even try to cross this budget. अगर बाइक आपको पसंद भी आता है, 1.5 लाख का बाइक है, छोड़ दीजिए उसको. आप बाइक खरीदिए जो 1.3 के नीचे है और जो आपके पर्पस और आपके रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है. Let's say you have decided कि आप इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटरसाइकिल में जाना चाहते हो, then you need to see in the market which manufacturer is giving you this type of motorcycle. I have given you a list of few manufacturers in India. There are many more. You can search in Google also and you will find the list of motor manufacturers in India, and then you can find the type of motorcycle they are selling. So basis your purpose, basis your requirement, basis your budget and basis your type of motorcycle,
यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा मेक में कौन सा मॉडल आपको जाना चाहिए। I will give you a very simple example. I want to buy a motorcycle. Now my purpose would be touring. मैं टूर करना चाहता हूँ. So my requirement would be I want a motorcycle which is less than 500 cc. मेरा बाइक टूरर है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बाइक मुझे एक माइलेज दे 30 to 35. I want a very neat design. मुझे ज़्यादा फैंकी फैंकी पसंद नहीं है। तो जब मैंने अपने रिक्वायरमेंट को सेट कर दिया है then I will set my budget. अब मैं अपना बजट को सेट करता हूँ, let's say 3 lakhs. Now once I have defined my purpose, I have given my requirement and I have defined type of motorcycle. As I said, I want to tour. मेरे हिसाब से adventure tourer, sport tourer या cruiser are the bikes which I will keep in my option. अब as I said कि भाई ये हो गया, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो ये सेगमेंट्स की बाइक देता है मुझे। तो एक हीरो होंडा है जिसके पास एक्सपल्स है, उसके पास एक टूरर है। सेकंड वुड बी बजाज के पास डोमिनर है और उनके पास एवेंजर है। एवेंजर क्रूजर सेगमेंट में आता है और डोमिनर इज हाइब्रिड। उसके बाद अब तीसरा बाइक देखूंगा तो आई विल सी फॉर टीवीएस में ऐसा कोई भी बाइक नहीं है जो मेरे रिक्वायरमेंट को मैच करता है। देन आई विल गो फॉर यामाहा में भी ऐसा कोई बाइक नहीं है जो मेरा रिक्वायरमेंट मैच करता है। Then I will go for Royal Enfield. अब Royal Enfield में आप देखोगे there are 2 motorcycles which are matching my requirement. One is Meteor 350 and then is Himalayan. अब Meteor 350 is a cruiser and Himalayan is an adventure tourer. तो इस हिसाब से the bikes which I have shortlisted would be Xpulse, Dominar, Avenger, Meteor, Himalayan and KTM का again Adventure 250. So ये सारे बाइक्स मेरे रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं। So next, once you have decided the motorcycle and you made a list of it, the next would be to take a test drive of the vehicle. अभी बाकी सब डीलर क्या करते हैं, they give you only 1 kilometer of test drive. वो बोलते हैं कि उस रोड के एंड जाओ और यू टर्न मार के आ जाओ। तो और वो रोड जो होता है उसमें आप उस बाइक के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला। As you are planning to invest so much amount in your bike, आप डीलर से ये ज़रूर बोलिए कि you want to take a test drive which will be at least 5 kilometers, minimum 5 kilometers. 5 किलोमीटर बाइक जरूर चला के देखना, उससे कम मत चलाना गाड़ी। और उनको पहले बोल दो कि आप 5 किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलाना चाहते हो और आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए। नॉर्मली कोई भी डीलर आपको डिनाई नहीं करेगा क्योंकि यू आर प्लानिंग टू बाय देयर बाइक, सो ऑब्वियसली दे विल अलाउ यू टू टेक ए टेस्ट ड्राइव फॉर एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स। अब जब टेस्ट ड्राइव करते हो आप सिर्फ स्पीड के ऊपर मत देखो, देयर आर मेनी अदर फैक्टर विच यू नीड टू कंसिडर। फर्स्ट थिंग वुड बी द कंफर्ट, क्योंकि आप बाइक में चलाने वाले हो, द बाइक शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू यू। सेकेंड वुड बी द मैन्योरेबिलिटी। आप सिटी ट्रैफिक में चलाओगे, हाईवे में चलाओगे या आप ऑफ रोडिंग करोगे तो बाइक का जो मैन्योरेबिलिटी है ना, इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू यू। तो आपको बाइक का कंफर्ट देखना पड़ेगा, आपको बाइक का मैन्योरेबिलिटी देखना पड़ेगा, आपको बाइक का माइलेज देखना पड़ेगा और लुक, आपको बाइक लुक भी देखना पड़ेगा। दैट इज़ इंडिविजुअल थिंग। किसी लोग को वो लुक पसंद आता है तो किसी लोग को वो लुक नहीं पसंद आता है। सो इट इज़ योर इंडिविजुअल परसेप्शन कि आप लुक को रखना चाहते हो कि नहीं, बट एनी हाउ यू आर गोइंग टू बाई दिस बाइक, तो लुक मैटर्स ऑल्सो। द फोर्थ वुड बी द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल। नॉर्मली वेन एवर यू आर राइडिंग आपको बाइक का वेट पता नहीं चलता, बट आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक करते हो, स्टॉप टू स्टॉप ट्रैफिक में जाते हो या आप टर्न करते हो तो बाइक का वेट बहुत पता चलता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा वेदर द बाइक वेट इज कंफर्टेबल टू यू, एंड देयर आर मेनी मोर चेक्स। लेट्स से आपने फाइनली टेस्ट ड्राइव ले लिया है बाइक्स का, जो भी बाइक्स आपने नोट किए थे सबके टेस्ट ड्राइव ले लिया आपने। अब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप डीलर से कोटेशन जरूर लेना, उनसे जरूर पूछना कि इज़ देयर एनी ऑफर गोइंग ऑन विद द बाइक, आर दे गिविंग एनी पर्क्स, इज़ देयर एनी कैश डिस्काउंट्स और इज़ देयर एनी एक्सटर्नल वारंटी विच इज़ गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू बाय द बाइक। आपने सभी बाइक के टेस्ट ड्राइव ले लिए, सभी बाइक के कोटेशन ले लिए, एंड नाउ यू आर बैक एट होम, देन यू नीड टू डू योर होमवर्क अगेन। अब इस होमवर्क में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या था, आपका रिक्वायरमेंट क्या था, आपका बजट क्या था और आपका टाइप ऑफ मोटरसाइकिल क्या था। देन आपने जो टेस्ट ड्राइव किए थे व्हीकल्स में, आप चेक करोगे कि इस टेस्ट ड्राइव व्हीकल में
ऐसा कौन सा बाइक है जो आपको आपके रिक्वायरमेंट को मैच करता है। देखिए, जस्ट कीप इन माइंड, नो बाइक इज 100% परफेक्ट, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल हाउ दे टेक इट। हर बाइक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। तो आपने जो टेस्ट ड्राइव किया था उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं, तो आपको उसके साथ आपके रिक्वायरमेंट को जज करना पड़ेगा कि भाई अब मेरा ये रिक्वायरमेंट था, मैंने ये मोटरसाइकिल टेस्ट ड्राइव किए हैं, अब ऐसा कौन सा मोटरसाइकिल है जो मेरे रिक्वायरमेंट को मैच करता है। बहुत सारे टाइम में सिनेरियो ऐसा होता है कि आप एक नहीं 2-3 बाइक्स आपके रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं और दो तीन बाइक आपको पसंद भी आते हैं। तो आप कौन सा बाइक डिसाइड करोगे? देन यू नीड टू चेक विद द बाइक विच इज़ हैविंग मार्केट वैल्यू अच्छा है, कौन से बाइक का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, कौन से बाइक का आफ्टर इन सेल्स सर्विस अच्छा है। तो बेसिस दैट आप डिसाइड करिए कि भाई ऐसा कौन सा बाइक है जो आपके रिक्वायरमेंट को मैच करता है। अब लेट्स से यू हैव कम डाउन टू वन पर्टिकुलर बाइक, congratulations, this is the time for you to go and book the bike. अब जब आप बाइक बुक कर रहे हो, प्लीज़ ensure that the bike which you are going to buy is within your budget. आप फिनेंस में गाड़ी खरीदना चाहते हो तो always ensure to pay at least 20 to 30% of the amount as down payment. Rest all you can go for finance. This is the minimum what I'm saying, maximum is to your financial status. आपके financial status के द्वारा आप decide कर सकते हो. So that's all for today's vlog. Hope you guys have enjoyed the video. If so, please do like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon to get notification from the channel. Until my next vlog, be safe, stay safe, peace.